some important concept regarding to the image formations by the spherical mirror. Okay, so you know that when the light is when a array, or simply you can say that if an object is placed beyond R, then its image will be forming between R and F. If the object is placed between R and F, then its image will be formed beyond R. Okay, and simple is that it will be enlarged image here in this case, and it will be diminished image here in this case. Okay, diminished image in this case. So let's discuss this one again. For example, if I'm going to give you a question, simple, an object is placed. Object distance means u means object distance. I'm writing here object distance. If the object distance is 15 centimeter and the focal length is 9 centimeter, 9 centimeter. So image formation would be range, मतलब क्या range होगी image की, बताइए मुझे. What would be the value of v? Will it be greater than something? किससे ज्यादा होगी? Will it be enlarged image or the diminished image? Will it be enlarged image, or diminished? Tell me. If the object distance is 15 centimeter, focal length is 9. Tell me, will it be enlarged image or the diminished image? It is a spherical mirror, concave mirror. Tell me, beta. This is a simple question. Sir, enlarge image. Yes, it will be enlarged image. Here, if you are saying focal length is 9 centimeters, so this will be 9. And double of this one will be 18. That will be radius of curvature. This will be 18 centimeter. So here 15. The object is placed at a 15. In between R and F, it is being placed here. So between R and F, if the object is placed, then its image will be formed enlarged. This will be the case. Got it, Kevin? Yes, sir. Okay. So let's move further. Okay. If you are talking about that the V image distance is 20 centimeter and focal length is 30 centimeter, will it be diminished image or the enlarged? U की range मुझे बताइए, where is the U placed? Okay, what will be the value of U? And will be enlarged or diminished image? Enlarged. Will it be enlarged or diminished image? Tell me.
टेल मी बेटा, सिंपल क्वेश्चन है. This is focus, this is radius of curvature, v is being given to you and f is 30. So of image is formed 20 पर. ये गलत हो गया यहाँ पर भाई, इस केस में नहीं कर सकते तुम. यहाँ पर मेरे को छोटी सी गलती हो गई. I have to write here that focus, no, it is 20. I'm writing here. Okay, image distance is, focal length is 15. Let focal length is 15 centimeter. Then tell me, will it be enlarged image or the diminished image? बताइए बेटा, सिंपल क्वेश्चन है, बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? Sir, enlarged. Yeah, it will be enlarged. Let's, because object means ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट का हम लोग निकालना है कि एनलार्ज इमेज होगी कि डिमिनिश इमेज होगी. अच्छा, यहाँ पर हम लोग को देखना होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल v is being given to you, यानी इमेज डिस्टेंस आपको गिवन है. तो इमेज इज फॉर्मिंग बिटवीन r and f. Why? Because focal length is 15. 20 will be coming in between this one. इससे ज्यादा ही होगा 20 यहाँ पर. Okay, this is 20 centimeter, this is 15 centimeter. So object must be, if the image is forming beyond r, so यहाँ पर object रखा होगा. और ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड आर होता है तो उसकी डिमिनिश इमेज बनती है. तो इट इज अ डिमिनिश इमेज. इट इज डिमिनिश इमेज, नॉट एनलार्ज. ओके, एनलार्ज होता जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको गिवन होता, इंस्टेड ऑफ v u is being given to you, तब then it will be enlarged image. Here it is diminish image. Okay, so let's move further. The next case, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली r पर रखा होता है तो उसकी इमेज r पर ही फॉर्मेशन, द इमेज फॉर्म इज एग्जैक्टली एट r. So let me explain you there also. Here we have another case. Object exactly r भी बोल सकते हैं इसको आप, c भी, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हो, और 2f कहीं भी आप बोल दीजिए. सो उसकी इमेज की फॉर्मेशन जो होती है दैट इज एग्जैक्टली एट r. इन्वर्टेड इमेज होगी, रियल इमेज होगी. और यू कैन मेक दिस इमेज लाइक दिस वे. आप इसको बना सकते हैं इस तरह से कि एक पहली इमेज ऐसे जाएगी रे, वो रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से आएगी. दूसरी रे फोकस से जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट होकर के पैरेलल आएगी. वेयर द टू रिफ्लेक्टेड रेज आर मीटिंग, जहां भी ये दो रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी वहीं पर हम बोलेंगे कि ओके ये मिल रही है. ओके, सो यू कैन सिंपली से हियर दैट हियर द इमेज फॉर्म्ड इज ऑफ सेम साइज. मींस अगर ऑब्जेक्ट का जितना हाइट है उतना ही इमेज की हाइट होगी. देयर विल बी सेम साइज, नो मैग्निफिकेशन, नो मैग्नीफाइड इमेज विल बी फॉर्म. कोई मैग्निफिकेशन नहीं होगा. मैग्निफिकेशन बोलेंगे तो सिर्फ वन मैग्निफिकेशन होगा, दैट वुड बी ऑफ सेम साइज. सो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है. सेम साइज की रियल इमेज इज ओनली फाउंड बाय कॉनकेव मिरर. सेम साइज रियल इमेज, रियल इन्वर्टेड इमेज इज ओनली फाउंड बाय कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस. अभी लेंस हम लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उसे छोड़ देते हैं अभी. सो अभी हम लोग बात करते हैं, दिस इज द कॉनकेव मिरर एंड द सेम साइज इमेज इज ऑलवेज फाउंड बाय रियल प्लेन मिरर भी सेम साइज इमेज बनाता है लेकिन वर्चुअल बनाता है, रियल नहीं बनाता. वी विल से दैट इन दिस केस द इमेज फाउंड इज रियल होगी एंड ऑफ सेम साइज. So here the u, the object distance, and the image distance, v is equal. U is equals to v, height of image is equals to height of object होगा. Okay, got my point? So this is the third case. So if I'm, So please repeat.
I'm saying that if an object is placed exactly at r, not beyond r, not after the r, exactly at r, exactly रेडियस ऑफ कर्वेचर पर अगर होता है, तो वो जो इमेज होती है वो ऑलवेज सेम साइज की इमेज फॉर्मेशन होती है और इन्वर्टेड इमेज होती है. सेम साइज की रियल इन्वर्टेड इमेज इज ओनली फाउंड बाय कनकेव मिरर एंड और कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस अभी छोड़ देते हैं, लेकिन कनकेव मिरर में अगर हम बात करें तो सिर्फ कनकेव मिरर सेम साइज की वर्चुअल इमेज बनाता है, सॉरी रियल इमेज बनाता है. रियल इमेज मतलब होता है इन्वर्टेड इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, जिसको आप स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं. वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, वो बिहाइंड द मिरर बनती है, पीछे बनती है. सो यहां पर हम बात करेंगे कि कनकेव मिरर जो होता है वो रियल सेम साइज की रियल इमेज बना सकता है, लेकिन इन्वर्ट मतलब रियल इमेज बनाएगा. ओके, वर्चुअल इमेज कैन बी फॉर्म बाय प्लेन मिरर. सेम साइज की वर्चुअल इमेज प्लेन मिरर बनाता है और रियल इमेज कनकेव मिरर बनाता है. ओके, सो इफ यू गेट एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दैट यू हैव आपके पास एक एम को हम लोग डिफाइन करते हैं मैग्निफिकेशन से. 1 इज ऑफ सेम साइज को रिप्रेजेंट करता है और प्लस इज इंडिकेटिंग द रियल इमेज एंड सॉरी वर्चुअल इमेज एंड माइनस इज इंडिकेटिंग द रियल इमेज. माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? रियल. प्लस यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्चुअल. एंड हियर 1 इज रिप्रेजेंटिंग, 1 दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सेम साइज इमेज, सेम साइज इमेज, नो मैग्निफिकेशन. 1 मैग्निफिकेशन मतलब उसमें कोई मैग्निफाइड नहीं, जितना साइज का ऑब्जेक्ट है उतना ही हाइट की इमेज, उतनी ही साइज की इमेज है. So if I'm writing here that 2 R and C is equals to 2, then the object at C, the image at C. तो अगर ऑब्जेक्ट एक C पर है तो इमेज भी C पर बनेगी, सेम साइज रियल इन्वर्टेड. ओके, सो दिस इज फॉर्म बाय प्लेन मिरर. ये जो फॉर्म करता है ये प्लेन मिरर फॉर्म करता है, प्लेन मिरर. एंड दिस इज फॉर्म बाय concave mirror और convex lens. तो इसको आप कॉपी कीजिए. लेट्स यू कॉपी दिस वन प्लीज, फास्ट कॉपी करें फटाफट से. Salam. Done. One second. Okay. I didn't- Done, sir. Okay, copy. Done, Kevin? Yes, sir. Okay. Okay, here is a question on your screen right now. Okay. If it is being asked in the examinations that you have
an object is placed at 21 centimeter, then it forms a slightly diminished image of an object. When the object is placed at 19 centimeter, then it forms slightly enlarged image. The approximate focal length of the mirror would be, कैसे कितना focal length होगा? If it is being given in the question that 21 centimeter, when an object is placed at 21 centimeter, then it forms slightly diminished image. When it is placed at 19 centimeter, it forms enlarged image, slightly enlarged image. Then tell me what would be the approximate focal length of the mirror? Sir, 10 centimeter and focal length, and the C will be 20 centimeter. Yeah. Why? Because when you place 21 centimeter, then it is forming the diminished image. What does diminished image कब बनती है? जब object beyond R होता है. Only the diminished image can be formed when the object is placed beyond R. जब object beyond R रखोगे तब R and F के बीच में image बनेगी यहाँ पर, and then it will be forming. So let's that R is that point. हम मान लेते हैं कि R को एक point है और उसके पीछे 21 सेंटीमीटर जहां भी डिस्टेंस है वो बियॉन्ड R ही होगा, तभी तो डिमिनिश इमेज बनेगी. एंड हम मान लेते हैं कि 19 सेंटीमीटर वो डिस्टेंस है जो R के बाद आता है, क्योंकि एनलार्ज इमेज कैन ओनली बी फॉर्म व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड आफ्टर द R के बाद जब आएगा तब हम मानेंगे कि ये हम मान लेते हैं ये जो है ये डिस्टेंस 19 सेंटीमीटर है और इसके पीछे वाला जो डिस्टेंस है वो 21 सेंटीमीटर है. तो R विल बी कहाँ होगा? 19 और 21 के बीच में. The R is that point, क्योंकि यहां पर जब रखते हैं हम लोग R के पीछे तो एनलार्ज, R से आगे रखते हैं तो डिमिनिश, सॉरी R के पीछे रखते हैं तो डिमिनिश, R के आगे रखते हैं तो एनलार्ज. सो ये 19 है, ये 21 है, तो बीच में R होगा. That would be on 20 सेंटीमीटर. सो अगर 20 सेंटीमीटर हम लोग मान रहे हैं, 20 सेंटीमीटर if we are considering the R, then its focal length will be रेडियस का हाफ होता है. That is 20 divided by 2, that you will get 10 centimeter. Got my point? Got it? Yes, sir. Okay. Let's move further. Wait, sir, can you repeat again? Yeah, why not? If I'm saying that, let me explain you one more time. That enlarged image is formed. This is focus, this is radius of curvature. Okay. So enlarged image is formed when the object is placed beyond R. Let's suppose here. Sorry, diminished image is formed when the object is placed beyond R. So if the object is placed beyond R, then its diminished image between R and F will be formed. So let that distance beyond R is 21 centimeter. And after in the question it is being given to you कि 19 सेंटीमीटर पर वो enlarged image की फॉर्मेशन करती है. तो अगर 19 सेंटीमीटर पर एनलार्ज इमेज बनानी है तो आपको ऑब्जेक्ट को आर की आगे रखना ही होगा. अगर आप आर के आगे नहीं रखेंगे तो आपको एनलार्ज इमेज नहीं मिलेगी. यानी कि 19 सेंटीमीटर यहाँ पर कहीं वो डिस्टेंस है जो आर के आगे है. दिस इज द 19 सेंटीमीटर. सो 21 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट 21 सेंटीमीटर इज बियॉन्ड आर. 21 सेंटीमीटर इज बियॉन्ड आर. यहाँ पर हम लोग R को मान लेते हैं 21 सेंटीमीटर बियॉन्ड R है, 19 सेंटीमीटर आफ्टर दी R है. तो R जो होगा वो 21 और 19 के बीच में होगा. तो 21 एंड 19 के बीच में हम लोग मान लेते हैं लेट इट इज 20. और फिर अगर ये 20 सेंटीमीटर देन यू कैन राइट इट 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, यू कैन राइट इट. फोकल लेंथ आपके पास आ जाएगी. गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. Okay, now here's one case. If the object is placed at infinite position, means infinite मतलब बहुत दूर है, then its image will be formed at focus.
ओके, कहीं भी बहुत दूर अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज जो बनता है वो फोकस पे बनता है। तो कई बार क्वेश्चन में ये गिवन नहीं होता कि इसकी फोकल लेंथ इतनी है, क्वेश्चन में गिवन होगा आपको कि एक ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, उसकी इमेज 13 सेंटीमीटर पर बन रही है, तो 13 सेंटीमीटर में मान लिया जाएगा कि वो फोकल लेंथ है, क्योंकि दूर ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो फोकस पे बनती है। तो अगर इफ द ऑब्जेक्ट इज एट means if it is being given to you a very distant object's image is formed at 13 centimeter of a concave mirror, ठीक है, ऑन तो हम लोग समझ जाएंगे कि 13 सेंटीमीटर जो है वो फोकस है। तो इमेज फॉर्म्ड एट फोकस highly diminished real inverted image is formed. Got my point? Do this one. Okay, so if the object, now the next case is if the object is placed at focus at infinite, it will be forming an image at focus. अगर infinite पर है तो focus पर image बनेगी, और अगर object focus पर रखा है exactly at focus, then the image will be formed at infinity, means बहुत दूर बनेगी और वो भी real and highly enlarged होगी. So this is the case when the object is placed at focus. And उसके बाद हमारे पास last case आता है जो कि बहुत बहुत ज्यादा important है, and that is if the object is placed after the f, yani between pole and focus. Object is placed between pole and focus, means here. Then in that case it will be forming an image that will be virtual और enlarge होगी. ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है. इट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट. बहुत सारे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं. So if the object is placed after the f, let's suppose here, then its image will be formed at behind the mirror. Here this image will be formed behind the mirror. अभी तक आप जो देख रहे थे वो सब इस तरफ इन्वर्टेड इमेजेस बन रही थी नीचे की तरफ, लेकिन ये पीछे की तरफ बनेगी इस केस में. तो if the object is placed between focus and pole, then its image will be formed. एक ऐसे रे आएगी, हम लोग बना के दिखा देते हैं. एक टॉप से पैरेलल लेके जाइए इसके रे और वापस फोकस से लेकर के आइए. सो ये जहां भी मिलेगी पीछे, हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि ये पीछे जहां भी मिलेगी ऐसे आई, से गई. दूसरी रे को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लीजिए, सी से, ये वापस उसी पाथ पर आ जाती है. तो ये जो दो रेज हैं ये आपस में कहीं नहीं मिलती. सो फिर ये पीछे हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये कहीं पीछे जाकर के ऐसे मिल रहे हैं. दे आर मीटिंग समवेयर हियर. ओके, सो वी विल एज्यूम दैट इट इज फॉर्मिंग एन इमेज बिहाइंड द मिरर, और इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये है हमारे पास वर्चुअल इमेज इज फॉर्म. तो कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज सिर्फ एक ही जगह बनाता है जब ऑब्जेक्ट फोकस से आगे रखा होता है. इसी तरह से कनकेव मिरर इज आल्सो यूज्ड एज अ शेविंग मिरर. शेविंग मिरर में हम लोग अपने फेस को बिटवीन फोकस एंड पोल लेकर आ जाते हैं. फोकस एंड पोल, उसकी वजह से हमारी जो है मैग्नीफाइड इमेज, हमारा जो है फेस बड़ा दिखाई देता है शेविंग मिरर में. इन द सिमिलर वे डेंटिस्ट जो होते हैं वो टूथ को देखने के लिए, टूथ की बड़ी इमेज को देखने के लिए, डेंटिस्ट यूज्ड टू डू दैट, दे ब्रिंग द concave mirror nearer to the our teeth, then such that the teeth become
या टीथ की जो पोजीशन होती है वो उसके फोकस और पोल के बीच में आ जाता है, जिससे एनलार्ज इमेज हम लोग को दिखाई देती है। तो कनकेव मिरर में अगर आपको इमेज देखनी है तो आपको अपना फेस जो है वो फोकस और पोल के बीच में लाना होता है और एनलार्ज इमेज उसमें दिखती है। रिमेंबर दिस वन, रिमेंबर दिस वन, concave mirror form the virtual image, concave mirror form virtual and erect means upright, virtual and erect image when object is placed between focus and pole, फोकस और पोल के बीच में। और दूसरा जो होता है इसके अंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये है कि ये वर्चुअल इमेज जो बनाता है वो एनलार्ज बनाता है। एनलार्ज इमेज इज फॉर्म, एनलार्ज इमेज इज फॉर्म। तो प्लीज कॉपी दिस वन। Sir, यस कॉपी दिस, जी बताएं। can you repeat object of focus? Object at focus, yes. Of focus, yes. If the At object is focus. placed, if the object is placed at focus, then the image will be formed at infinite, means बहुत दूर, मतलब इमेज कहीं पे बनती ही नहीं, मतलब बहुत दूर बनती है। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रेज हम एज्यूम करते हैं कहीं बहुत दूर जाकर के मिलेंगी और वहां पर इमेज बनेगी। ओके, सो Okay, sir. दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, बस याद Okay. रखना ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर होता है तो पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट्स आती है। अगर एक बहुत छोटा सा डिमिनिश ऑब्जेक्ट आप रख देते हैं, so then it will be forming an image at infinite distance. And for pole and focus, between pole and focus. Between pole and focus, then it will be forming a virtual image. Okay. Yes, sir. For pole and focus, the image will be formed behind the mirror. Yes, behind the mirror. Okay.
Sir, can you repeat for pole and focus? Yes, 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 why not? When the object is placed between pole and focus, then the virtual image is formed. Virtual image is formed. Let me explain you here one more time कि virtual image कौन सी होती है, that cannot be obtained on a screen. जैसे आपने देखा होगा प्लेन मिरर में जो इमेजेस बनती हैं वो सब पीछे की तरफ बनती है. प्लेन मिरर में अगर आप ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखेंगे, दिस इज द ऑब्जेक्ट, देन द इमेज विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर. बट प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो सेम साइज की वर्चुअल इमेज बनती है, लेकिन इसमें जो इमेज बनती है वो एनलार्ज इमेज बनती है, एनलार्ज बड़ी इमेज बनेगी. फोकस और कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में होना चाहिए. इफ द ऑब्जेक्ट इज एग्जैक्टली एफ या एफ के पीछे कहीं भी है, तब रियल इमेज बनेगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज विल बी फॉर्म्ड. गॉट इट? Yes, sir. And as before F, real and inverted. Yeah. And after F will be virtual and indirect. Virtual and indirect image will be formed. Like this you have dentist में इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो डेंटिस्ट है वो अपनी इमेज को लेकर के आ रहा है कॉन्केव मिरर में, और वो जो इमेज है आप अगर देखेंगे तो इस केस में जो इमेज बनती है वो मिरर के अंदर बन रही है और एनलार्ज इमेज इज फॉर्मिंग. Okay. Do this one. Copy this one. This one is the case of convex mirror. This one is the case of convex mirror. अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, we were studying the concave. Now we are studying the convex mirror. Okay. So when the object is placed at infinity, then the image will be formed at focus. जो कन्वेक्स मिरर होता है उसके अंदर बाहर की तरफ जो होती है वो शाइनी सरफेस होती है और अंदर की तरफ पॉलिश सरफेस होती है. ओके, सो here in this case you see that the objects are forming the real images. सब अंदर है, सिर्फ एक को छोड़ करके बाहर है, मतलब एक पीछे की तरफ है, सिर्फ फोकस और ऑब्जेक्ट के बीच में जब होता है तो. लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि when the object is placed, मतलब parallel lines are coming and object is placed at focus, means अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट कहीं भी है इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस. और अगर उसके अलावा इंफिनिटी और मिरर के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे sir, yes, your mic cut off. Can you repeat again, sir? Yeah, why not? I'm saying that if the object is placed some at infinite distance, let me explain you here. Okay, an object, this one is a convex mirror, and the object is placed at infinite. So when the object is placed at infinite, then we assume that अच्छा इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे तो इसका फोकस जो आएगा वो कहीं यहाँ पर इसका सेंटर होगा. इसको अगर मैं कंप्लीट करूंगा इस सर्कल में, और यहाँ पर कहीं इसका फोकस आएगा, लेट्स सपोज कि यहाँ पर फोकस आया. सो अगर कहीं भी ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है तो हम लोग मानते हैं कि बहुत दूर ऑब्जेक्ट से पैरेलल बीम्स ऑफ रेज आती है. द पैरेलल बीम्स ऑफ रेज विल बी कमिंग हियर. ओके, एंड दे विल बी what will be they doing? They will be डाइवर्जिंग, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है तो ये डाइवर्ज करेगा इसको लाइक दिस वे.
लेकिन डाइवर्ज कुछ इस तरह से करेगा कि इसको अगर हम लोग पीछे की तरफ मिलाते हैं, इफ वी आर मेकिंग दिस वन हियर, ओके, एंड दिस वन हियर, देन दे विल बी, मतलब अंदर तो नहीं जाएंगी रेस, क्योंकि पॉलिश सरफेस के अंदर नहीं जा सकती, मतलब मिरर के अंदर तो नहीं जा सकती रेस। तो ये कुछ इस तरह से डाइवर्ज होती हैं कि अगर आप इनको पीछे लेकर के आएंगे तो दे विल बी मीटिंग एट फोकस। ये कुछ इस तरह से डाइवर्ज होंगी कि यहां से ये ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, and that will be meeting at focus. So here the image will be formed at focus. If the object is placed at infinite distance, the image will be formed at focus. कोई सा भी मिरर हो, ये जरूरी नहीं है कि कॉन्केव मिरर हो, अभी हम लोगों ने केस पढ़ा था, लेकिन याद ये रखना है कि कब रियल इमेज बनती है और कब इन्वर्टेड इमेज बनती है। Sir, Okay? this is convex, right, sir? Yeah, this is convex mirror. This is convex Okay, mirror. sir. And convex mirror की हमेशा अंदर की तरफ ही इमेज बनती है। तो सॉरी, मतलब अगर हम बोलूंगा मिरर के पीछे, मिरर तो यहाँ हो गया, मिरर के पीछे बनती है, तो मिरर के पीछे अगर इमेज बनती है तो ये हमेशा ऑलवेज वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, ऑलवेज वर्चुअल। और वर्चुअल होगी तो उसके साथ साथ वो इरेक्ट, मतलब सीधी इमेज भी होगी, इट विल बी एन इरेक्ट इमेज, वो हमेशा इरेक्ट इमेज भी होगी। उसके अलावा अगर आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पर ना रख करके, सॉरी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ना रख करके अगर आपने कहीं भी रखा है उसको, लेट्स सपोज करो आपने यहां पर रखा है, सो यहां से आप एक रे को ऐसे लेके जाइए पैरेलल पैरेलल, देन इट विल बी मूविंग लाइक दिस वे, वो इस तरह से मूव करेगी कि वो मतलब डाइवर्ज होगी कि वो पीछे अगर उसको एक्सटेंड किया जाए तो फोकस पर जाए। सो कुछ इस तरह से ये डाइवर्ज करेगी रे और ये फोकस पर मीट करेगी। एंड द सेकेंड वन विल बी पासिंग थ्रू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो बिल्कुल डाइवर्ज नहीं करेगी, इस तरह से जाए और इस तरह से वापस आए थ्रू द आर। सो ये यहां पर आर और एफ के बीच में इमेज बने। सो अगर ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा है इनफाइनाइट डिस्टेंस के बाद और मिरर के बीच में कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज जो बनेगी वो फोकस और पोल के बीच में बनती है और वर्चुअल इमेज बनेगी, फोकस एंड पोल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट ऑलवेज formed virtual diminished image, ये कभी भी एनलार्ज इमेज नहीं बना सकता। सो अगर मैं बोलता हूं कोई एक मिरर है, वर्चुअल इमेजेस कितने तरह की होती है, सेम साइज हो सकती है वर्चुअल इमेज सेम साइज, एनलार्ज सेम साइज, वर्चुअल इमेज जो होती है वो एनलार्ज हो सकती है, सेम साइज हो सकती है, और वो डिमिनिश हो सकती है। तो डिमिनिश कैन ओनली बी फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। अगर हम लोग मिरर की बात कर रहे हैं तो ये कन्वेक्स मिरर बनाएगा, कन्वेक्स मिरर। सेम साइज सिर्फ प्लेन मिरर बना सकता है, प्लेन मिरर। और एनलार्ज इमेज सिर्फ कॉनकेव मिरर बना सकता है, कॉनकेव मिरर बना सकता है। वो भी कब बनाएगा, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा हो, तब एनलार्ज इमेज बनाता है कॉनकेव मिरर, वर्चुअल। ओके, सो अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था पीछे केस, कॉनकेव मिरर जब फोकस और उसके बीच में, तब ये वर्चुअल इमेज बनाता है। कि हमेशा रियल बनाता है बस एक केस में, when the object is placed between focus and pole, then in that case it will be going to form a virtual image, and the condition for the virtual image formed by the concave mirror is enlarge, not the same size, not diminish. Same size कौन बनाता है, same size is formed by the plane mirror, and the diminished image is formed by the convex mirror, and enlarged image is formed by the concave mirror. Copy this one, concave mirror. Done, sir.
उसके बाद हमारे पास आता है साइन कन्वेक्शन. Sir, please wait. I was writing. ओके ओके. Yes, sir. Okay. Next one is sign conventions. Sign convention. Sign convention. Sign convention is very important part for solving the numerical regarding to the to this chapter, and that is कि इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, means you know that x axis and y axis. So this is, let's suppose this is the x axis, this is the negative y negative axis, this is y axis, this is negative y axis. So you knows very well that कि यहां से अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को लेते हैं कनकेव मिरर में, सो ये वाला जो डिस्टेंस होता है, ये वाला डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होता है, ये नेगेटिव एक्सिस में आता है. मींस दिस मेजरमेंट, यहां से आप इसको जो भी मेजर करेंगे, चाहे आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर कीजिए, चाहे आप फोकल लेंथ को मेजर कीजिए, कुछ भी आप मेजर कीजिए, इमेज डिस्टेंस मेजर कीजिए, अगर वो इस तरफ है, यानी कि आपको इस ओ से आपको ऐसे मेजर करना है, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव. अगर आपको इस पॉइंट से ऐसे मेजर करना है तो पॉजिटिव. अगर आपको इस पॉइंट से ऊपर को मेजर करना है तो पॉजिटिव, इस पॉइंट से नीचे को मेजर करना है तो नेगेटिव. तो जैसे आप जानते हैं बेटा कि कनकेव मिरर जो होता है, अगर आप उसको कंप्लीट करेंगे तो उसकी फोकल लेंथ इस तरफ आएगी, यानी कनकेव मिरर है, उसको कंप्लीट करोगे तो उसकी फोकल लेंथ का जो मेजरमेंट आएगा, जहां भी उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सपोज कीजिए यहाँ पे आया, तो फोकस यहाँ पर आएगा, तो ये जो मेजरमेंट होगी ये नेगेटिव होगी. अगर कन्वेक्स मिरर की जगह पर कनकेव मिरर होता, लेट्स सपोज ऐसे कनकेव मिरर होता, तब उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती. क्यों? क्योंकि उसकी मेजरमेंट जो होगी वो इस तरफ आएगी, ऐसे मेजर करेंगे आप इस पॉइंट से. सो यू हैव टू डू दिस वन. गॉट इट? आपको ऐसे करना होगा कि आपको मेजरमेंट के हिसाब से वैल्यूज को पुट करना होगा कि अगर वो इस तरफ आए तो इस तरफ है तो पॉजिटिव, नेगेटिव. ऑब्जेक्ट को हम लोग आर्बिट्री लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड पर रखने की वजह यह है कि वो हमेशा आर्बिट्री चूज किया हम लोगों ने कि ऑब्जेक्ट को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे. अगर हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड पर ऑब्जेक्ट को रखा है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव. मींस वो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव होगा ऑलवेज. ठीक है? अगर इमेज सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव माना जाएगा. क्यों माना जाएगा? क्योंकि ये वाली यहाँ से यहाँ तक की जो मेजरमेंट है वो नेगेटिव एक्सिस में आती है. जैसे -1, -2, -3 कुछ भी करके आप लिखते हैं, तो ये माइनस में आती है. यहां से यहां तक ये सपोज करो कि इसकी इमेज जो है वो इस तरफ बनी, सो ये वाला डिस्टेंस जो होगा, इमेज डिस्टेंस, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव. इसको हम लोग पॉजिटिव मानेंगे क्योंकि यहां से इस तरफ मेजर करोगे तो पॉजिटिव. ठीक है? और अगर इमेज नीचे क्यों बन रही है ऐसे, तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा v, वो हम लोग मानेंगे फिर से नेगेटिव, क्योंकि मेजरमेंट इस तरफ की मेजरमेंट नेगेटिव है, उस तरफ की मेजरमेंट पॉजिटिव है. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि वो ऑलवेज ऊपर को मेजरमेंट होगी. ऊपर को मतलब यहां से ऊपर का डिस्टेंस जो मेजर होता है पॉजिटिव होता है. इमेज डिस्टेंस, इमेज हाइट ऑफ द इमेज डिपेंड करता है कि वो वर्चुअल है कि रियल इमेज है. अगर रियल इमेज होगी तो वो नीचे को होगी, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो यहाँ हो, कहीं भी हो. नीचे की जो मेजरमेंट होती है, यानी कि इस पॉइंट से जो नीचे को मेजर होगा, जो नीचे को मेजर करोगे आप, तो वो नेगेटिव होगा. अगर हाइट ऑफ द इमेज आपको मेजर करनी है और वो इरेक्ट इमेज है, यानी कि सीधी इमेज है, तो वो ऊपर को बनेगी, ऊपर को उसको मेजरमेंट होगा, यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आप इस एक्सिस से नापोगे, इस एक्सिस से मेजर करोगे, वाई पॉजिटिव एक्सिस से. सो यहां पर मैंने लिखा है कि u इज ऑलवेज नेगेटिव होता है, ऑलवेज नेगेटिव. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव. व्हाई? बिकॉज ये डिस्टेंस आप मेजर करोगे इसके अकॉर्डिंग, इसके रेस्पेक्ट में, ये वाले एक्सिस के रेस्पेक्ट में, सो इसलिए नेगेटिव. हाइट ऑफ द इमेज इज नेगेटिव. नेगेटिव होगी अगर रियल है, तो अगर नीचे को आपको मेजर करनी होगी तो आप रियल के साथ इन्वर्टेड इमेज होगी. सो height of object is positive or negative? height of the object is always positive. Positive, right?
Why? Because you have to measure this one. आपको ऊपर को मेजर करना है ना. जैसे यहाँ पर सपोज करो ये 5 सेंटीमीटर है, तो आपको यहीं पे तो दिखेगा 5 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर होता तो 10 सेंटीमीटर आप इसे एक्सेस कर लेते हैं. और अगर नीचे कोई इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है, तो रियल इमेज में जो डिस्टेंस मेजर करेंगे इसमें 5 -5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वाला एक्सेस जो होता है वो नेगेटिव में होता है. -5 सेंटीमीटर, -2 सेंटीमीटर, माइनस जितना भी आएगा वो नीचे को मेजर होगा. तो रियल इमेज के केस में नेगेटिव होती है हाइट ऑफ द इमेज, और पॉजिटिव होती है वर्चुअल इमेज के केस में. वर्चुअल इमेज ऊपर की तरफ, आप जैसे सपोज करो ये वाला वर्चुअल इमेज है, तो ये बिहाइंड द मिरर बन रही है, वर्चुअल है. सो वर्चुअल इमेज के केस में आप इसके रेस्पेक्ट में मेजर करेंगे, यहाँ से इस एक्सेस के, यहाँ पर जो भी रीडिंग होगी आप वो, तो ये पॉजिटिव एक्सेस में आ गया. So, sir, if it's going up, it's virtual. If it's going up, like virtual, is it virtual? Yeah, it is virtual. So if it's going down, then it will be real. real. Okay. Okay. In the similar case for mirrors, अब ये मिरर के लिए कुछ है, ये तो हमेशा वो है, मतलब सभी के लिए, मिरर एंड लेंसेज सभी के लिए. लेकिन मिरर के लिए कुछ स्पेशल है यहाँ पर, कि मिरर में कनकेव मिरर V is negative if real inverted image is formed. मिरर के लिए V नेगेटिव होगा. क्यों होगा? रियल इमेजेस के लिए, क्योंकि रियल इमेजेस हमेशा इस तरफ बनती है. रियल इमेजेस मिरर के लिए इस तरफ बनती है, यहां बनेंगी इस तरफ, मिरर के पीछे नहीं बनेंगी. तो V यानी इमेज डिस्टेंस यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस. अगर यहां बनी है तो यहां, अगर यहां बनी है तो ऐसे. तो ये जो डिस्टेंस होगा ये ऑलवेज नेगेटिव होगा. V इमेज डिस्टेंस यानी नेगेटिव होगा इफ रियल इमेज इज फाउंड, एंड पॉजिटिव होगा इफ वर्चुअल इरेक्ट इमेज इज फाउंड. मिरर के लिए बात है, मिरर के लिए ये V पॉजिटिव हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? क्योंकि मिरर में वर्चुअल इमेज पीछे बनती है. मिरर में वर्चुअल इमेज पीछे की तरफ बनती है, मिरर से पीछे बनती है. तो ये वाला जो डिस्टेंस आप मेजर करेंगे, आप वो इस एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मेजर करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस. एंड दिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस में V जो होगा वो पॉजिटिव आएगा जब वर्चुअल इमेज होगी, यानी बिहाइंड द मिरर इमेज की फॉर्मेशन होगी. तो उसके बाद है हमारे पास फोकल लेंथ. फोकल लेंथ इस कनकेव मिरर की, चाहे वो कनकेव मिरर हो, चाहे वो कन्वेक्स कनकेव मिरर हो, कनकेव लेंस हो, दोनों की नेगेटिव होती है. फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव होती है. वाई? क्योंकि ये आप इस तरफ मेजर करोगे तो उसकी फोकल लेंथ इस तरफ कहीं आएगी. यहाँ रेडियस हो गया, यहाँ फोकस हो गया, इस तरफ कहीं फोकस होगा. सो जहां भी इस तरफ हम बोलेंगे कि इस तरफ इसमें पॉजिटिव होता है, उस तरफ इसमें नेगेटिव होता है. गॉट इट? गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. ओके. Can I write it, sir? यस यस, व्हाई नॉट. Sir, U is always negative, right, sir? U is always negative. Every time you have to take the U as negative. Object distance negative, always. Sir, can you repeat the four mirror one, the fifth one, focal length? I'm not. क्या क्या बोल रहे हो बेटा? The focal length one.
Can you The repeat focal that? length is positive for the concave mirror. Why? मैं समझा देता हूँ एक बार. Convex mirror, sorry. पॉजिटिव देखो, अभी आप देखते हो यहाँ पर मैंने ये नेगेटिव है, सपोज करो ये -1, -2, -3. सो अगर मैं एक कनकेव मिरर लेता हूँ तो इसको अगर मैं कंप्लीट करूंगा, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर, सो ये इस तरफ आएगा, इसका रेडियस इस वाले एक्सिस में रेडियस आएगा, उधर तो नहीं आ रहा ना रेडियस, तो उधर नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उधर तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता रेडियस. वो एक सर्कल है भाई, ऐसे मैं बोलूंगा इसका सेंटर बताइए यहाँ पर होगा कि यहाँ होगा, सेंटर तो यहीं पर होगा, ये इसका सेंटर है, तो इसका सेंटर कुछ इस तरफ आएगा तो उसकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव एक्सिस पर आएगी, तो दैट विल बी कंसीडर्ड फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर विल बी नेगेटिव, बिकॉज ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में आती है. अगर मैं बोलता हूं कि कन्वेक्स मिरर है तो कन्वेक्स मिरर को हम लोग ऐसे रखेंगे. सो कन्वेक्स मिरर का बताओ सेंटर इस तरफ होगा कि इस तरफ होगा? यहां पर होगा सेंटर, तो फोकस इधर आएगा, तो कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ इस तरफ आएगी, पॉजिटिव होगी. गॉट इट? Yes, sir. Sir, I can't see the screen. Okay. I can't see the screen. All right, done, sir. Done. So that's all for today. We'll meet you in the next class tomorrow. इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि एक ही दिन में मैं सारा कुछ पढ़ा दूंगा तो यू विल गेट कंफ्यूज. जितना आपने पढ़ा है उतना उसको रिवाइज कीजिएगा अच्छे से. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ओके. कोशिश कीजिएगा कि मैग्निफिकेशन मैंने जो पढ़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार जरूर रिवाइज कीजिएगा. ओके. Okay, sir. सो